Hello students, welcome to our YouTube channel. This is your English teacher, Mrs. Priti, going to start our topic future tense. Future tense is divided into four parts, that is simple future, future continuous, future perfect continuous. The formation of simple future is subject plus will shall plus V1 plus object. In negative sentences, subject plus will shall plus not plus V1 plus object. The formation of interrogative sentences are will shall subject plus V1 plus object plus question mark. With first person, it means I and we use shall. With second person and third person, it means he, she, it, any name, we use will. Use of simple future is to express such action which shows time of future. फ्यूचर का जो टाइम शो करे यानी एक्शन फ्यूचर में हो रहा है तो इट मीन्स सिंपल फ्यूचर इज देयर. सम वर्ड्स वी यूज इन सिंपल फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, यानी फ्यूचर का जो भी टाइम शो करेंगे और मेंशन हो उसमें हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे. फॉर इंस्टेंस आई शेल गो टू स्कूल टुमारो. टुमारो क्या शो कर रहा है? फ्यूचर को शो कर रहा है. इट मीन्स वी यूज शेल प्लस V1. In this tense for determination, promise, threat, intention, etc., we use will with I and we. Shall is used for second and third person. It means you, he, she, it, they. It means कि भाई अगर टेंस इस टेंस में कहीं डिटर्मिनेशन दे रखा है, कहीं प्रॉमिस बता रखा है, कहीं थ्रेट मीन्स धमकी देना, वार्न करना, इंटेंशन मीन्स इरादा. अगर ये सारी चीज़ें किसी सेंटेंस में मेंशन हैं तो हम यूज़ करेंगे विल को तो हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ और शेल को यूज़ करेंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ. फॉर इंस्टेंस आई विल राइट टू यू फ्रॉम दिल्ली. ये प्रॉमिस है, ये सेंटेंस प्रॉमिस शो कर रहा है. इट मीन्स आई के साथ हम विल यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ नहीं करेंगे. He shall suffer from this. This sentence shows threat and warning. Warning और threat शो कर रहा है, धमकी दिखा रहा है, तो it means he के साथ हम shall का यूज़ करेंगे. It is also used for planned work और fixed work in future. अगर कोई planned work हो future का या fixed work हो उसके लिए भी हम simple future का यूज़ करते हैं. For example, the national game begin next week. Now next part of future is future continuous tense. Its formation is subject plus will shall plus be plus V1 plus ing plus object. In negative sentence, subject plus will shall plus not plus be plus V1 plus ing plus object. In interrogative sentence, will shall plus subject plus V1 plus ing plus object plus question mark. Use of this tenses to express an action which will occur in the normal course. उस एक्शन के लिए हम करेंगे इसका यूज़ जो नॉर्मल कोर्स में चलता रहे, नॉर्मल थिंग है, जो नॉर्मल बातें हैं उनमें चलता रहे. फॉर इंस्टेंस आई विल बी seeing him tomorrow. Next use is to express an action that will be in progress at a given time in future. It means कोई भी वर्क हमारा फ्यूचर में गिवन टाइम में फ्यूचर में क्या कर रहा हो, प्रोग्रेस पे हो, यानी कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी शो करे, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो करे. फॉर इंस्टेंस एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय, आई शेल बी सिटिंग इन द ऑफिस, मैं कहाँ होऊंगा, ऑफिस में होऊंगा. इन द इंटेरोगेटिव, it means in this tense, in interrogative, the future continuous tense merely implies a polite question. क्या दिखाता है जो future continuous tense है? merely means only. वो क्या शो करता है कि polite question को शो करता है. polite ही question put करेंगे future continuous tense में. for example, will you be going to the market tomorrow? Next part of this tense is future perfect tense. The formation of future perfect tense is subject plus will shall plus have plus V3 plus object. In negative sentence, subject plus will shall plus not plus have plus V3 plus object.
Interrogative sentence, will, shall plus subject plus have plus V3 plus object plus question mark. Now the use of this tense to express such action that will be finished or complete in the fixed time of future. It means future का टाइम में, फ्यूचर में कोई भी जो वर्क है या कोई एक्शन है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस, द वर्कर्स विल हैव कंप्लीटेड दिस जॉब. नेक्स्ट यूज इज इफ देयर आर टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर. अगर दो एक्शन फ्यूचर के हों, दो वर्क फ्यूचर के दिखा रहे हों, दो वर्क शो कर रहे हों फ्यूचर के, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट विद द फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, while with second completed action simple present will be used. It means हम simple अगर क्या है फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, और जबकि जो सेकेंड एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे. फॉर इंस्टेंस, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. अब क्या था, पेशेंट पहले ही मर चुका होगा, उसके लिए फर्स्ट एक्शन हो गया कि उसकी डेथ हो गई, तो उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया. बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर बाद में आया है, इट मीन्स सेकेंड डीड हो गए, इसलिए सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ. नाउ द लास्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस ऑफ वो प्लस टाइम फ्रेज. In negative sentences, the formation is subject plus will shall plus not have been plus V1 plus ing plus since of for. Interrogative sentence में will shall plus subject plus have been plus V1 plus ing plus question mark. The use of this tense is to express the action in which a specific time of future is given. इट मीन्स उस एक्शन को शो करता है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जिसमें फ्यूचर का फिक्स टाइम दे रखा हो, अदर देन द टाइम ऑफ सिंस और फोर, और सिंस और फोर के अलावा भी कोई टाइम दे रखा हो. बाय यूजिंग बाय, किसका यूज कर रखा हो, उसमें बाय का यूज कर रखा हो, बाय के साथ कोई टाइम मेंशन कर रखा हो, या फिर टाइम क्लोज इन विच सिंपल प्रेजेंट V1 इज यूज्ड, या कोई टाइम क्लोज दे रखा है उसमें भी क्या यूज होगा, V1 का यूज होगा. फॉर इंस्टेंस, बाय नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. अब फॉर 10 years यहाँ टाइम दे दिया, और बाय से क्या दे दिया, बाय नेक्स्ट मंथ एक टाइम और मेंशन कर दिया, एक बाय से मेंशन कर दिया और एक फोर से मेंशन कर दिया. नेक्स्ट इंस्टेंस इज the team will have been practicing for an hour before the month begins. अब एक जगह मेंशन कर दिया कि for an hour, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेंशन कर दिया before the month begins. अब इसमें before the month begins में सिंपल प्रेजेंट V1 का यूज किया है. तो that's the end of future tense. Hope you understand, student. Thank you for listening.